Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. Today in this video we are going to discuss standard 6 and chapter number 5, that is In Search of Peace, Buddha and Mahavir, and this is the first part. Now as far as this chapter is concerned, you have so many words that are totally new for you. So watch the video properly and listen it. Okay, then you can understand the chapter very well. So in search मतलब to find it out. Okay, peace मतलब शांति, Buddha and Mahavir. Now this Buddha, that is the Lord Buddha, which is connected with Buddha religion, and this Mahavir means Mahavir Swami, and he is connected with the Jainism. Okay, Jain religion. So how they worked, how was their life, how they did, and which kind of principles they give to us. Okay, to live the life happily, that we are going to see in this video. So first let us start. In the 6th century BC, now you know very well BC, full form of BC, that is before common era. Important reforms करना मतलब to change something, new लाना, okay, changing करना, were done in the social and religious sector in India. So it is also very important that in the 6th century BC, means what is the time? So 6th century, what had happened? So important reforms मतलब changes. Okay, which kind of changes like happened in India? So social as well as the religious मतलब connected to any religion, धर्म को लेकर. तो कहाँ पे changes हुए? तो social as well as religious changes. In the 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered in the social and religious areas. So that is also very important. Reformers मतलब the person who wants to change something. So they worked against, किसके against work किया? तो social evils मतलब bad deeds. Okay, जो खराब है वो, that had entered in the social and religious area. जो bad deeds और evils जो कहाँ पे entered हुए थे? So social and religious area में जो entered हुए थे उसको remove करने का काम किसने किया? So reformers ने किया. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Okay, so they try to like remove these social evils and even religious evil, as well as they try to remove social inequality. मतलब जो equality नहीं थी वो सारी inequalities को remove किया, as well as immoralities. Now immoralities means what? So we can say wrong or sinful, जो पाप हम लोग कहते हैं वो सारी situation को भी उन लोगों ने remove करने का work किया. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. So as far as this social and we can say religious reformers are concerned, so which two we have to take? So Gautam Buddha and Mahavir Swami. So they are important characters. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. So what is pursuit? Pursuit मतलब trying to achieve something. So कैसे उन लोगों ने कुछ चेंज करने का सोचा, एंड हाउ दे एस्टेब्लिश ह्यूमैनिटी मतलब मानवता. एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ कैसे अच्छे से बिहेव करे, सो दैट इज़ ह्यूमैनिटी. सो हु ट्राइड टू एस्टेब्लिश और परस्यूट ह्यूमैनिटी? सो भगवान, और वी कैन से गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी. So first of all we are going to learn about Gautam Buddha. So we obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism form of Jatak Katha and Buddhist text Tripitak. Okay, so that is also very important. We get a lots of information about Gautam Buddha. कहाँ से हमें lot of information मिलती है? From Buddhism. ओके, सो डेफिनेटली जो बौद्ध धर्म है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लस जातक कथा. नाउ व्हाट इज जातक कथा? जातक कथा आर द स्टोरीज ओके ऑफ लॉर्ड बुद्धा. मतलब एक बुक है जहाँ से हमें जो गौतम बुद्धा की स्टोरीज है वो जानने को मिलेगी, दैट इज़ जातक कथा. एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बौद्ध रिलीजन के टेक्स्ट है, बुक्स है, एंड द नेम इज़ त्रिपिटक. 3 मीन्स 3.
ओके, एंड पिटक मतलब जहाँ पे हमें रिलीजियस इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो द क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ 1 मार्क्स दैट राइट द नेम्स ऑफ 3 पिटक. सो सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक. So it is very important and you have to remember 3 means 3. Okay, and which 3 are there? So Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. About 550 Jatak stories are associated with the pre-birth of Buddha. Pre मतलब आगे का. ओके, लॉर्ड बुद्धा के जो बॉर्न हुआ उसके आगे की टोटल वी हैव हाउ मेनी स्टोरीज. सो 250 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड मीन्स कनेक्टेड विद दैट. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी जातक स्टोरीज आर देयर. सो 550. देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज while going towards Nepal. So here also very important हमें information मिलेगी कि उनका जो birth है वो कहाँ पे हुआ था. So kingdom called Kapilvastu. Now in 4th chapter we have already discussed about this religion, okay, and the chapter was early states of political system in India. So in that chapter we have already discussed about Kapilvastu. Foothills मतलब small walking path. ओके, जहाँ पे स्मॉल वॉकिंग पाथ है वो कहाँ के, तो हिमालयाज. वाइल गोइंग टवर्ड्स नेपाल, वाइल गोइंग टवर्ड्स नेपाल मतलब नेपाल की ओर जाते हैं तो वहाँ पे फुट हिल्स है हिमालय की, वहाँ पे ये सिचुएटेड है कपिलवस्तु. द क्षत्रियज ऑफ कपिलवस्तु वर कॉल्ड शाक्य. इट वॉज अ रिपब्लिक. नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड. ओके, रिपब्लिक मीन्स वॉट? सो इलेक्टेड पीपल, ओके, एंड दे आर डूइंग द लाइक ruling of that particular kingdom. And we have one more word, monarchy, means we have the kingship. Okay, so the kshatriya, which people were lived there, so kshatriyas. तो कपिलवस्तु के जो क्षत्रिय है तो उन लोगों को कौन से नाम से जाना जाता है? शाक्य. ओके, एंड इट वॉज अ रिपब्लिक. दे वर रिपब्लिक. शुद्धोधन वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक. और ये जो रिपब्लिक था कौन सा? कपिलवस्तु. तो हु वॉज द हेड? So that is also very important. Suddhodhan was the head of this republic. Mayadevi was the wife of Suddhodhan. So that is also very important, that who was the wife of Suddhodhan. So Mayadevi was wife of Suddhodhan. Gautam Buddha was born in the house of Suddhodhan and Mayadevi in 566 BC. So that is also important, means we can say that Gautam Buddha, birthplace of Gautam Buddha, that is Kapilvastu. Okay, what is the name of his father? So the name of father was Shuddhodhan and mother's name was Maya Devi. Okay, his childhood name was Siddhartha. So from here also the question will be definitely there, that what was the childhood name of Gautam Buddha? Okay, so the childhood name of Gautam Buddha was Siddhartha. After few days of his birth, his mother Maya Devi died. We have already discussed that who was the mother of we can say Siddhartha or Gautam Buddha, so Maya Devi. But what happened? Some tragedy happened and after few days of his birth, मतलब सिद्धार्थ का जब बॉर्न हुआ, सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्धा का, उसके बाद उसकी जो मदर है माया देवी, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. Therefore he was nurtured by Gautami Mahaprajapati who was his foster mother. So nurtured मतलब to look after. To look after. Okay, here to look after and protect. And foster मतलब गोद लेना जिसको हम बोलते हैं वो. Take a child who needs a home. Who needs a home. Okay, in this chapter you have so many new words, so watch the video carefully. So what happened that after few days of the birth of Siddharth means Gautam Buddha, उसकी जो ओरिजिनल मदर है माया देवी, उनकी डेथ हो जाती है. एंड दैट्स वाई व्हाट हैपन कि उसको लुक आफ्टर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो लेडी है, द नेम ऑफ दैट लेडी वॉज गौतमी महाप्रजापति. वो उसकी क्या बनती है? फोस्टर मदर, मतलब जो चाइल्ड गोद लेती है उसको. ओके, From young age, Siddharth was associated with education and knowledge. And when he was young, okay, from that time only he was associated, मतलब connected with education and knowledge. मतलब वही टाइम से उसके पास अच्छा सा knowledge and education था. Next to Kapilvastu, there was a monastery of a saint named अलारा कलाम. So that is also very important. हमने देखा कि कपिलवस्तु जो है वो फुट हिल्स है नेपाल
तरफ जाते हैं तब, तो उसके नज़दीक मतलब कपिल वस्तु के एकदम नज़दीक मोनेस्ट्री मतलब आश्रम, ओके, एक सेंट का मोनेस्ट्री था मतलब आश्रम था, एंड द नेम वॉज दैट सेंट वॉज अलारा कलाम। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अलारा कलाम वॉज हिज गुरु, सो हु वॉज गुरु ऑफ गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ, सो अलारा कलाम वॉज हिज गुरु, so that is also very important. You have to remember the whole life and the person who were connected with the life of Gautam Buddha. Siddhartha went to his ashram. Here he did meditation. Meditation करना मतलब वो ध्यान करना, like yoga. Okay. Siddharth's father was worried as he continued to discuss knowledge and samadhi. Definitely वो आश्रम में जाते हैं, okay, और what was the name of that saint? So अलारा कलाम। तो वहाँ से नॉलेज लेके सिद्धार्थ was talking about knowledge and समाधि। समाधि means you know very well कि लिविंग पोजिशन में गॉड को we can say प्रेज करने के लिए we are doing समाधि एंड तप फॉर years and years। तो ऐसी बात सुन के जो सिद्धार्थ के फादर है वो वरीड हो जाते हैं, मतलब उनको टेंशन आ जाता है कि अगर सिद्धार्थ समाधि ले लेगा सो व्हाट विल हैपन। सो ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। मॉन्क मतलब सेंट, भिक्षुक जिसको हम बोलते हैं वो, ओके। तो उनको क्या वरीड हुई कि एक ही तो बेटा है और वो भी अगर मॉन्क बन गया, सेंट बन गया, सो व्हाट विल हैपन। Siddhartha was married at a young age. His wife's name was Yashodhara, so it is also very important. And he also had a son named Rahul. So you have to remember name of father. Who was father of, we can say, Gautam Buddha. So definitely the answer is Suddhodhan. Okay, mother's name, so Maya Devi, and foster mother we have Gautami Mahaprajapati. Then name of wife, so Yasodhara, and son Rahul. So you have to remember all this information. Now home sacrifice and Siddharth. Home sacrifice मतलब घर को छोड़ देना, लीव करना, कैसे, and why he left his home, and साधना मतलब कैसे गॉड को प्रेज किया, तो that we are going to discuss. At the age of 30 he decided to renounce his royal family. Renounce करना मतलब लीव करना, त्याग करना of his royal family and state, and became a saint hermit in search of truth. Okay, at the only age of 13 what happened, he left his house, royal family, because we have already discussed कि वो जो king थे और we can say leader उसके सन थे, तो भी वो क्या करते हैं, अपने रॉयल फैमिली को लीव करके सेंट बनने के लिए चले जाते हैं। फॉर वॉट? सो सर्च ऑफ ट्रूथ। क्या ट्रूथ है, what is the life, okay, how we have to spend it, how we can praise to God. So for that he left his royal family. One night he took his charioteer, means जो रथ चलाता है वो, what is the name, so Channa, and horse, what was the name of his horse, so Kanthak, and went to the river bank outside his state. उसके जो स्टेट था कपिल वस्तु, उसके बाहर किसको लेके, तो चैरियोटियर जो है छन्ना, एंड जो हॉर्स है कंथक, उसको लेके रिवर बैंक साइड आउटसाइड द स्टेट वहाँ पे चले जाते हैं। लिविंग हिज रॉयल एटायर, एटायर मतलब आउटफिट, वी कैन से क्लोथ। नाउ यू नो वेरी वेल कि एक लीडर का बच्चा है तो डेफिनेटली वो जो क्लोथ्स होंगे वो भी रॉयल होंगे। ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चन्ना एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। ओके, वो पहन के तो सारे रॉयल अटायर गए थे, बट वहाँ पे पहुँच के उन्होंने क्या किया कि छन्ना जो है मतलब जो रथ चलाने वाला है उसको ऑर्डर किया कि जो हॉर्स है कंथक उसको लेके कहाँ चले जाना है, पैलेस में रिटर्न चले जाना है। मीन्स वो साथ में नहीं जाएंगे, ओनली लॉर्ड बुद्धा विल गो। ओके, और वो दोनों को कहाँ पे भेज दिया, अपना जो पैलेस है राजमहल वहाँ पे भेज दिया। He himself wore the aesthetic clothes. Now what is aesthetic? Aesthetic means not allowed, I'm writing here, not allowed for physical pleasure. For physical pleasure. Pleasure. वी कैन से जो सन्यासी होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे, तो उसने कैसे किए, तो एस्थेटिक क्लोथ्स पहने ऑफ द हर्मिट मतलब सेंट के, साधु के, एंड वॉक टवर्ड्स द जंगल मतलब जो टोटली रॉयल अटायर है वो निकाल दिया
मतलब जो उन लोगों ने रोप पहना होता है या क्रोन एंड ऑल दैट थिंग्स. सो ही रिमूव्ड ऑल द थिंग्स एंड ही वॉर एस्थेटिक क्लोथ्स, मतलब नॉट अलाउड फॉर फिजिकल प्लेजर, जो हमें फिजिकल प्लेजर दे, हमारी बॉडी टोटली सेव हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, वैसे क्लोथ नहीं. बट विच काइंड ऑफ क्लोथ्स? सो द हर्मिट, जैसे सेंट पहनते हैं वैसे क्लोथ पहन के उन लोगों ने क्या किया, जंगल की ओर वो चले गए. After leaving his home, he went to Rajgriha and then to Puruvela. Okay, so that is also very important. घर को लेफ्ट करके वो कहाँ गए? तो पहले राजगृह गए and then Puruvela. Here he started penance with 5 Brahmins. So what is penance? Penance मतलब प्रायश्चित करना, और we can say here I am writing punishment that you give yourself to show sorry. ओके, अगर हमने जो भी खराब काम किया है उसको हम सुधारने के लिए, मतलब प्रायश्चित करने के लिए कहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं? तो राजगृह एंड पुरुवेला. और कितने ब्राह्मण्स के साथ? सो 5 ब्राह्मण्स. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस चैप्टर इज लिटिल बिट हार्ड बिकॉज ऑल द वर्ड्स आर लाइक न्यू फॉर यू. He felt that giving up food and water and tormenting the whole body would not yield knowledge. Now what is tormenting? Tormenting मतलब give harassment. Harassment. Now कैसे harassment? तो physically as well as mentally. मतलब पीड़ा देना. किसको? See, वो क्या लीव कर देते हैं? फूड एंड वाटर लीव करके उनको समझ में आया कि अगर इफ़ वी आर लिविंग लाइक रॉयल लाइफ, ओके, और नॉर्मल लाइफ, देन वी कैन नॉट गेटिंग नॉलेज. हियर नॉलेज मीन्स डीप नॉलेज, ओके, और वी कैन से नॉलेज ऑफ लाइफ, एक्चुअल नॉलेज, जिसको हम दिव्य नॉलेज भी कंसिडर कर सकते हैं. वो पाने के लिए वो क्या करते हैं? फूड एंड वाटर को भी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं. कॉन्करिंग द पाथ. नाउ व्हाट इज कॉन्करिंग? कॉन्करिंग मतलब टू टेक कंट्रोल. टू टेक कंट्रोल. एक्चुअली कॉन्करिंग का मीनिंग फाइट भी होता है, बट हियर वी हैव टू टेक इन अ सेंस टू टेक कंट्रोल. द पाथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द डिज़ायर इज़ द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. यू नो वेरी वेल. डिज़ायर मतलब हमारी जो विशेस है, वो हमारी जो विशेस है ना, वो कभी फील नहीं होती है. इफ़ वन गेट ओवर देन वी हैव द सेकेंड वन विल गेट ओवर देन वी हैव थर्ड वन. सो इट विल नेवर स्टॉप. सो वॉट ही डिड, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब एकाग्र होने के लिए, शांत होने के लिए वो क्या करते हैं कि कॉन्करिंग पाथ करते हैं, मतलब जो भी डिज़ायर्स है उसको स्टॉप कर देते हैं. लिविंग 5 ब्राह्मण्स ही डिसाइडेड टू पेनेंस अलोन. सो व्हाट इज पेनेंस? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या करते हैं कि 5 ब्राह्मण को छोड़ के पेनेंस अलोन मतलब डिसाइडेड टू गो अलोन. वो क्या करते हैं? डिसाइडेड टू गो अलोन मतलब वो 5 को वहाँ छोड़ के वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं. नाउ फ्रॉम हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलाइटमेंट मतलब दिव्य प्रकाश के लिए, दिव्य नॉलेज के लिए वो कहाँ पे साधना करते हैं? तो पीपल ट्री के नीचे. तो ये पीपल ट्री दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम. बनियन ट्री इज देयर, मैंगो ट्री इज देयर. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? पीपल ट्री. एंड विच वॉज द प्लेस? सो बोधि गया. आज भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ इन डेज ऑल्सो. सो बोधि गया में वो क्या करते हैं? साधना करते हैं. फॉर वॉट? So for truth and enlightenment. After many days of sadhana, he got knowledge on the day of Vaishakh Purnima. So it is very important. 1-2 दिन में साधना हो के भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते. आपने रामायण महाभारत वो सब में देखा होगा कि वो हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं. तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. ये पीपल ट्री के नीचे बोधि गया में आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हुआ कि नॉलेज हुआ, मतलब एक्चुअल ज्ञान प्राप्त हुआ, गॉड प्रसन्न हुए. और एंड इट वॉज द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा. एंड दैट्स वाई वैशाखी पूर्णिमा जो होती है उस दिन हम लोग गौतम बुद्धा का बर्थ बनाते हैं. ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ. तो ओरिजिनल नेम हमने देखा था कि सिद्धार्थ वॉज अ नेम ऑफ लाइक चाइल्डहुड का नेम था. तो जब नॉलेज हुआ तो नेम क्या हो गया अभी? बुद्धा. यू नो वेरी वेल कि जैन धर्म या कोई भी में जब दीक्षा लेते हैं और वी कैन से सेंट बनते हैं तो ओरिजिनल जो नेम होता है ना वो चेंज हो जाता है. तो सिद्धार्थ ओरिजिनल नेम था, फिर वो चेंज होके क्या हो गया? बुद्ध.
बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइज, मतलब बहुत होशियार, कॉन्शियस हो, वाइज हो. लेटर ऑन ही कॉल्ड गौतम बुद्धा एंड देन आफ्टर राइट नाउ ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग हिम एज गौतम बुद्धा. नाउ प्रीचिंग करना मतलब गिव अ टॉक ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट मतलब बोध देना, उपदेश देना. आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटमेंट Buddha went to Sarnath where he met his old Brahmin friends. We have already discussed कि जो 5 friends थे उन लोगों को छोड़ दिया था, तो वो फिर बोधि गया से कहाँ रिटर्न होते हैं, सारनाथ में. आज भी वहाँ पे एक स्तूप है. ओके, नाउ व्हाट इज स्तूप जो है वो एक राउंड होता है, मतलब राउंड का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर जो बोधिस्ट सेंट होते हैं उन लोगों की डेथ के बाद उन लोगों के जो भी यूज़फुल मेटल्स जो वो यूज़ करते थे या टूल्स, उसको वहाँ पे रखा जाता है. सो दैट इज़ स्तूप. और ये इवन हमारी जो करेंसी नोट है उसके ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलता है. फॉर द फर्स्ट टाइम ही पर्च्ड टू दोज 5 ब्राह्मण्स मोक एट सारनाथ. और सारनाथ जाके वो जो 5 ब्राह्मण फ्रेंड को लीव करके आए थे, सबसे पहले उनको पर्च्ड किया, मतलब उनको उपदेश दिया. बुद्धस दीज फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से MCQs में भी आ सकता है, फिलअप्स में. दैट फर्स्ट प्रीचिंग और प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कॉल्ड ब्लैंक. सो धर्म चक्र प्रवर्तन. सो दैट इज़ अ नेम. धर्म मतलब रिलीजियन, चक्र मतलब जिसको हम राउंड कंसिडर करते हैं, एंड प्रवर्तन कैसे लाइफ है वो गोइंग फॉरवर्ड. सो दैट इज़ अ होल इन्फॉर्मेशन. सो धर्म चक्र प्रवर्तन. Buddha gave very simple sermon. Now what is sermon? Sermon मतलब speech on religious matter, speech on religious subject. To get read. Now what is read? Read मतलब free from. Okay, you write down these all the meanings in your textbook. Of the miseries. Now what is miseries? Miseries मतलब physical distress जो होता है या तो mental stress of the world. जो हम लोग वी आर लिविंग बट वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड. हमारी जो लाइफ है वो हैप्पी नहीं है. हम लोग कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ओके, सो वो सबसे हम लोग जब दूर हो जाएंगे देन वी हैव लाइक रियल लाइफ. तो उन्होंने ऐसे मतलब जो है प्रिंसिपल्स दिए. अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 4 आर्य ट्रूथ्स. आर्य ट्रूथ्स मतलब जो एक सत्य है, वो कौन से 4 जो है वो सत्य है. सो सी द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिसरीज मतलब जो फुल ऑफ सीनफुल वी कैन से, जो फिजिकल मेंटल डिस्ट्रेस से हमारी भरा हुआ है पूरा वर्ल्ड. द कोज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. ग्रीड मतलब लोभ, लालच, और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब हमारी विशेष इतनी सारी है कि हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है टू गेट. ओके, मनी के पीछे हम लोग भागते रहते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रेनंसिएशन ऑफ द डिज़ायर. सो व्हाट इज डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन मतलब टू रिमूव द थिंग्स, और वी कैन से टू डिस्ट्रॉय समथिंग मतलब नाश करना. टू सफरिंग रेन्यूंसिएशन. सो व्हाट इज रेन्यूंसिएशन? रेन्यूंसिएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी हम नहीं रिक्वायर्ड थिंग्स है वो और डिज़ायर को हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है. एडॉप्शन ऑफ ऑक्टेगनल पाथ दैट इज अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिज़ायर. और हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल मतलब 8 एंड अष्टांग मीन्स 8. जो 8 मार्ग है मतलब जो वेज है वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो डिज़ायर्स है वो क्या हो जाएगी, वी कैन गेट इवन प्योर नॉलेज. सो विच आर दीज 8 वेज और अष्टांग वेज. सो सी these 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principle, also known as Samyak Darshan. So that is also very important. ये जो 4 principles जो लॉर्ड बुद्धा ने दिए हैं, principles, see the spelling PLES, but instead of PL it is there. So principle मतलब स्कूल के principle, but here PLES principle मतलब rules, and they are called as Samyak Darshan. जो सम्यक लाइट साइट मतलब अच्छा देखना, सम्यक रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना, स्पीच सम्यक डीड्स मतलब वर्क, सम्यक अर्निंग मतलब ऑनेस्टली अर्न करना, सम्यक एक्सरसाइज मतलब अच्छे वर्क करना, सम्यक मेमोरी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखना, सम्यक समाधि मतलब प्रे करना. सम्यक इज अ संस्कृत वर्ड. सम्यक मीन्स प्रॉपरली. ओके, सो प्रॉपरली देखना, सॉल्व करना, स्पीच
डीड्स मतलब वर्क, अर्न करना, then exercise, these all are like a stung mark that we have already discussed, so that is also very important. Then Buddha is a great reformer मतलब सुधारक. So Buddha was a great religious and social reformer. He worked life long to eliminate करना मतलब प्रकाशित करना, to pollutants in religious and society. जो भी सोसाइटी में बैरियर्स थे वो बैरियर्स को तोड़ने के लिए और सबके अंदर एक रियल ट्रूथ के लिए उन्होंने वर्क किया. ही हैड मैनी डिसिपल्स मतलब फॉलोवर्स. मैनी किंग्स एंड स्टेट्स व एनकरेज्ड बाय हिज ह्यूमन रिलीजन. और उनकी वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो भी एनकरेज हुए थे मतलब प्रभावित हुए थे. ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स मतलब कैसे अच्छे वर्क किए. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल डैनियल ऑफ द गॉड एंड सोल. सो व्हाट इज डैनियल? सो दैट इज अ statement that something is not true. Something is not true मतलब कोई चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते. तो वो क्या एक्सेप्ट नहीं करते हैं? गॉड एंड सोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सी बुद्धा डिनाइड करना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मानिज्म. वो गॉड और सोल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. सो टू होम ही गेव द इम्पोर्टेंस. सो कर्मा मतलब डीड. हम लोग बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी. जैसे अच्छा काम करोगे तो हमें अच्छे मिलेंगे और बुरा काम करेंगे तो हमें वो ही मिलेगी. सो ही बिलीव इन कर्मानिज्म मतलब डीड्स के ऊपर बिलीव करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम इफ देयर वाज अ गॉड सॉरोज वुड नॉट हैव बीन देयर. वो गॉड को मानते ही नहीं है एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि गॉड अगर होता तो वहाँ पे सॉरोज मतलब जो दुख है पेन है वो तो होते ही नहीं. सो वो गॉड में बिलीव करते नहीं है. इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग करना मतलब टू डू समथिंग फॉर प्लेजर. टू डू समथिंग फॉर प्लेजर मतलब हमें खुशी मिले उसके लिए हम जो वर्क करते हैं दैट इज इंडल्जिंग. इन वेलफेयर ऑफ सोल वन शुड लिव अ वर्चुअस लाइफ इन प्रेजेंट. वो क्या बोलते हैं कि गॉड तो है ही नहीं, इससे बेटर है कि हम वेलफेयर मतलब हमारी आत्मा है उसके लिए वर्क करें तो हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी. मीन्स अच्छे वर्क करने हैं डीड्स उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है. गॉड और सोल के ऊपर फोकस किया नहीं है. हम ऐसे मानते हैं कि गॉड है और सोल भी हम ऐसा मानते हैं कि इमॉर्टल है, वो कभी मरती नहीं, हमारी डेथ होती है बट जो सोल है वो एज इट इज़ रहते हैं. पर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया. देन ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल्स मतलब जो हम फॉलो करते हैं ट्रेडिशन उन्होंने वो भी ऑपोज किया. ही ऑपोज रिचुअल परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस. एट दैट टाइम व्हाट हैपन कि जब यज्ञ होते थे तो हम लोग क्या करते थे? एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे मतलब एनिमल की बलि चढ़ाते थे. तो वो भी उन्होंने स्टॉप किया. ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज़ द हाइएस्ट वैल्यू. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा जो है वो सबसे हाइएस्ट वैल्यू है. The greatest duty of all human being is not to treat animals non-violently. And what is the main duty and best duty of human being? So to treat the animals non-violently. जो animals है उसको non-violently मतलब अहिंसा से treat करें, उसको मारना नहीं है. That is the best duty. Opposition of discrimination of high and low. Discriminate करना मतलब difference. So ऑपोज किया उन्होंने किससे? तो हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस था वो भी ऑपोज किया. राइट नाउ इवन वी हैव इन अवर सोसाइटी कि दोज हु आर वेरी एरिस्टोक्रेटिक तो उन लोगों को हाई स्टेटस मिलता है. दोज हु आर पुअर सो दे आर लो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. सो उनका भी उसने ऑपोज किया. सो एट द टाइम ऑफ हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण. वर्ण मतलब अलग अलग कास्ट में मतलब बेसिकली डिवाइड हुए थे. तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ये शूद्र जो थे ना वो सबसे लो थे एंड ब्राह्मण तो वो सबसे बेस्ट है. ये शूद्र आई थिंक आपने सुना होगा कि वो लोग जब कहीं पे भी जाते थे तो बैक साइड उन लोगों को ब्रूम लगा के चलना पड़ता था ताकि उन लोगों की जो फुटप्रिंट्स है वो रिमूव हो जाए. मतलब उतना डिस्क्रिमिनेशन था तो वो भी उन्होंने स्टॉप किया. Buddha opposed this Varna system. He said, being born in a high family does not make anyone great. What he said कि अगर हमारा born high family में हुआ that doesn't mean कि हम लोग great है. We are great because of our deeds. हम लोग जो काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या बनते हैं? high या low बनते हैं. He becomes great by his deeds, by his conscience and following the path of truth and non-violence. If anybody follows the path of truth and non-violence, then and then we became the great person. He highly opposed the discrimination of
हाई एंड लो प्रिविलिंग इन द सोसाइटी। प्रिविलिंग मतलब जो थी वो पहले की सिस्टम, तो उन्होंने अपोज किया। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, सो बुद्धा गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू द वुमेन एज मैन। मैन और वुमेन बोथ वर लाइक सेम। He said that the path of nirvana is not only for man, woman can also achieve nirvana through sadhana and duty. Now what is nirvana? nirvana मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना। ओके, बौद्ध रिलीजन में ऐसा बिलीव होता है कि हमारा जब डेथ हो उसके पहले जो हमें प्लेजर मिलता है, सो दैट इज़ निर्वाण। तो जो लेडीज़ है वो भी वो निर्वाण है, वो क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है। देन निर्वाण, सो बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन द शेडो ऑफ द बोधि ट्री इन वैशाख पूर्णिमा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, बोधि गया में पीपल ट्री के नीचे। बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजन इन इंडिया। जैसे ही उनको नॉलेज मिला तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। ही लेड मैनी पीपल टवर्ड्स राइटियस पाथ, मतलब जो राइट पाथ था उनके ऊपर वो सारे लोगों को लेके गए। Giving preaching of truth and non-violence, he opposed eating of non-vegetarian food and even high and low discrimination. Two things are very important. एक तो non-violence को importance दिया and second one क्या था कि जो non-veg खाते हैं उनको भी उन्होंने क्या किया, मतलब purged किया। He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana. कहाँ पे वो मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो कुशीनारा में at the age of 18 years. But his ideas and religion is still alive in the world. But still we are following the Ashtang Marg and all that thing. Okay, so that is the first part of Gautam Buddha. I hope it is clear to you. Still you have any doubts, so you can write it comment box, so I will try to solve your problem. And thank you for watching the video. If you like the video, then share with your other friends also. Have a nice day.